دوستو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک سوال کے ساتھ جو کہ یہ ہے کہ if the Alexander is great and the Ashoka is great so why the Hitler is not great؟ کیونکہ دوستو دیکھا جائے تو ان تینوں کا خواب ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو فتح کرنا، اور ان تینوں نے ہی اپنی زندگی میں بہت زیادہ جنگیں لڑی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم الیگزینڈر کو گریٹ کہتے ہیں، اشوکا کو گریٹ کہتے ہیں اور ہٹلر کو ہم صحیح نہیں سمجھتے؟ دوستو اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان تینوں کی زندگیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں جس کے بارے میں ہم بات کرنے کو ہیں ان تینوں میں سے وہ ہے دا الیگزینڈر گریٹ۔ یونیک ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ 490 BCE پرشین امپائر کے راجا ڈیریس نے گریس پر حملہ کر دیا۔ گریس کا کیپٹل ایتھنس، یہاں پر موجود ہزاروں مورتیاں اور بہت زیادہ مندر جو ان کے بنائے ہوئے تھے ان سب کو ختم کر دیا، اور آنے والی کئی صدیوں تک گریس کا بچہ پرشینز کے خلاف ہو گیا اور ان کے خون کا پیاسا بن گیا۔ 356 BCE میسیڈونیا، گریس کے اس چھوٹے سے قصبے میں ایک بچے نے جنم لیا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ دی سن آف گاڈ ہے، سکندر ہے۔ 334 BCE سکندر نے اس چھوٹے سے تنکے سے اپنی سلطنت کو قائم کیا، اپنے ملک کا بدلہ لیا اور پورے پرشین امپائر کو تباہ کر دیا، اور اب دنیا کا نقشہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے۔ 326 BCE سکندر انڈیا کی سرحد پر کھڑا ہے اور اگلا نشانہ ہے انڈیا۔ وہ انڈیا کو جیت نہیں پاتا ہے اور اپنے ملک میسیڈونیا واپس چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ سارے پہلو ہیں جو کہ آپس میں مل کر اور پھر دی الیگزینڈر کو راجاؤں کا راجا شہنشاہ بنائیں گے۔ دوستو الیگزینڈر کی پیدائش 356 BCE میں میسیڈونیا کے ایک شہر پیلا میں ہوئی۔ دوستو سکندر کے پیدا ہوتے ہی لوگ اسے دی سن آف گاڈ زیوس کہنے لگے، اور سکندر کی ماں اولمپیاس نے بھی لوگوں کا اس چیز میں بہت ساتھ دیا۔ دنیا کے سارے فادرز کی طرح الیگزینڈر کے فادر بھی جو کہ فلپ II تھے، الیگزینڈر کو ایک قابل اور سمجھدار اور کبھی نہ ہارنے والا راجا بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت گریس میں موجود سب سے بیسٹ اسکالرز کی مدد سے فلپ II نے اپنے بیٹے الیگزینڈر کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی۔ انہی فلسفرز میں دنیا کے مشہور فلسفر ایرسٹوٹل کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے صرف 3 سال کے اندر ہی الیگزینڈر کے اندر صبر اور بہت سی ایسے گن پیدا کیے جو کہ اس کے آگے زندگی میں کام آئے اور یہ ایک اچھا راجا بن سکے۔ اور دوستو اس کی پہلی جھلک میسیڈونیا کے لوگوں کو دیکھنے کو ملی جب الیگزینڈر دی گریٹ نے صرف 10 سال کی عمر میں ہی ایک گھوڑے کو جس کا نام بیسیفیلس تھا، جو کہ ایک بے قابو گھوڑا تھا، بڑی آسانی سے ٹرین کر لیا۔ اس کے بعد صرف 18 سال کی عمر میں ہی الیگزینڈر نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیٹل آف چیروینیا میں حصہ لے لیا، جہاں انہوں نے اپنے مقابلے میں تھیبنز اور ایتھنس کی فوجوں سے جنگ کی اور انہیں ہرایا، اور یہ الیگزینڈر کے سفر کی شروعات تھی۔ اور یہ پہلی بار تھا کہ جب الیگزینڈر نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اس کے اوپر یقین اور بڑھ گیا کہ وہ دی سن آف گاڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتا گیا الیگزینڈر کا جنون اور پرشین امپائرز کے خلاف نفرت۔ وہی پرشین امپائر جس کو مٹانے کا سپنا گریس میں موجود ہر بچے نے اور اس کے پتا نے دیکھا تھا، اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے الیگزینڈر دی گریٹ گریس میں موجود سبھی شہروں پر حکومت کرنے لگا۔ دوستو اسی دوران الیگزینڈر نے کئی شہروں کی آرمی، وہاں کے نوبلز، کمانڈرز سبھی کو میسیڈونین آرمی کے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے ساتھ کر لیا تاکہ مصیبت کے وقت سبھی کی وفاداری سکندر کے لیے ہو۔ گریس کے سبھی شہروں کو جیتنے کے بعد سکندر پرشیا کی طرف بڑھنے لگا، اور اسی دوران اس کا سامنا ہوا پرشیا کی پہلی آرمی سے، ایک ایسی آرمی جو کہ سائز میں سکندر کی آرمی سے ڈبل تھی، لیکن اس کے باوجود سکندر یہ جنگ جیت گیا صرف اپنی عقل مندی اور ہمت کے دم پر، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی سکندر کے لیے کہ اپنے سے ڈبل آرمی کو بھی سکندر نے ہرا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جیت سکندر کی کہانیوں میں بیٹل آف گرنیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں الیگزینڈر کو پرشین آرمی کی طاقت کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج اور اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ اتنی بڑی آرمی ہونے کے باوجود اپنی جنگ کی منصوبہ بندی کے بلبوتے پر اس جنگ کو جیتا۔ اس جنگ کے بعد الیگزینڈر نے ایشیا مائنرز کے کئی حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جہاں وہ نہیں پہنچ پایا تھا ان شہروں نے خود ہی اپنے آپ کو الیگزینڈر کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ پر پرشیا کے ایک حصے کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد بھی اس نے وہاں کے کلچر کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس نے وہاں پر موجود سبھی لیڈرز کو، کمانڈرز کو ان کی ایمانداری کے بدلے
अपनी मर्जी के मुताबिक रहने की आजादी दी। इसका फायदा ये हुआ कि एरिस्टोटल की बिना जबरदस्ती किए दिल जीतने वाली अपनाते हुए अलेक्जेंडर कई सारे लोगों का दिल जीत चुका था। और दोस्तों ये बहुत इंप्रेसिव बात है कि जंग जीतने के बाद भी अलेक्जेंडर ने लोगों के दिल में जगह बना ली और पर्शियन अंपायर के कई हिस्सों को मैसेडोनिया में मिला दिया। पर दोस्तों कहते हैं ना कि शेर की प्यास पानी से नहीं बुझ सकती, और अलेक्जेंडर का मकसद तो शुरू से ही पर्शियन आर्मी को तबाह करना था। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपनी आर्मी के साथ पर्शियन आर्मी के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसका सामना अब तक की सबसे बड़ी पर्शियन आर्मी के साथ हुआ। और दोस्तों ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने अंपायर को इतना भराने के बाद भी ये पर्शियन आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी से बहुत बड़ी थी। अलेक्जेंडर की फौज में थे सिर्फ 47,000 सोल्जर्स और वही पर्शियन आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स। लेकिन पर्शिया के राजा डेरियस III अलेक्जेंडर की साजिशों को अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर के खिलाफ जंग में अपने लोगों को ज्यादा तादाद होने के बावजूद भी फुल एक्टिव होकर जंग लड़ने का सजेशन दिया। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी डेरियस अपनी फौज को अलेक्जेंडर से नहीं बचा पाएगा। इन दोनों आर्मीज के दरमियान गोगुमेला में जंग शुरू हुई तो अलेक्जेंडर ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पर्शियन फौज को अपने ऊपर हमला करने दिया ताकि ग्रीक आर्मी पीछे हट जाए, और ग्रीक आर्मी के पीछे हटते ही और पर्शियन आर्मी जीतने की कोशिश में आगे आए, और वहीं बीच में बने गैप से अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी को गुजारा और अपने बहादुर सोल्जर्स के साथ वहां तबाही मचा दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि डरा सहमा डेरियस जब वहां से भागने लगा तब उसके ही कमांडर ने उसको मार दिया। ये जंग ऐसी जंग थी जिसने अलेक्जेंडर की किस्मत की काया ही पलट दी, क्योंकि दोस्तों इस जंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खत्म हो गया था और द अलेक्जेंडर द ग्रेट सिर्फ 25 साल की उम्र में ही एशिया का मास्टर बन चुका था। इतना ही नहीं, अब उनकी हुकूमत सिर्फ मैसेडोनिया तक नहीं रह गई थी, वो अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। पर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ 2 जंगें ही अलेक्जेंडर को ग्रेट बनाती हैं? क्योंकि दोस्तों हमारा मेन सवाल तो यही है कि अलेक्जेंडर ग्रेट है। तो दोस्तों नहीं, क्योंकि गोगुमेला में मिली जीत के बाद अलेक्जेंडर ने सभी कमांडर्स और गवर्नर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना लिए थे और आम लोगों का दिल जीतकर और उनसे ग्रेट रिलेशन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने पर्शिया में ग्रीक कल्चर, रिलीजन या कोई कानून कुछ भी जबरदस्ती लागू नहीं किया, उल्टा वो खुद उनके इवेंट्स वगैरह मनाने लगा। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि उसने किसी को भी, किसी गवर्नर को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपने दुश्मन डेरियस की बेटी से शादी भी कर ली, जिसके बदले में एरिस्टोटल की सीख के मुताबिक उसे लोगों का प्यार और हमदर्दी मिली। अलेक्जेंडर एक बहुत समझदार इंसान था। वो जानता था कि जब तक लोगों को उससे कोई फायदा ना मिले वो उसको अपना राजा नहीं मानेंगे। इसलिए जंग के बाद जब पर्शिया की तिजोरियां खोली गईं, तो उसका जितना भी माल था उसको कुछ हिस्सों में बांट लिया गया। इससे ना सिर्फ अलेक्जेंडर की वाहवाह हुई बल्कि पूरे मुल्क के अंदर बिजनेस भी भरा। लेकिन दोस्तों जीत के रास्ते में पीठ में खंजर कुछ अपने ही मारते हैं। ये बात सिर्फ किताबी नहीं है। इन मंसूबों से अलेक्जेंडर ने चाहे पर्शिया के कमांडर्स और उनके लोगों को खुश कर दिया, लेकिन इस वजह से उसके अपने कमांडर्स ही उससे नाराज थे और वो सभी मिलकर अलेक्जेंडर के खिलाफ ही साजिशें करने लगे। लेकिन दोस्तों अलेक्जेंडर भी कोई मामूली नहीं था। वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही एक्टिव था कि जैसे ही उन्हें अपने खिलाफ हो रही साजिश का पता चला तो उन्होंने फौरन उस शख्स को कत्ल कर दिया। और दोस्तों ये बात अलग है कि जीत का नशा इंसान को किसी भी हालत में रुकने नहीं देता, और इसी नशे की लत अलेक्जेंडर को भी लग चुकी थी। तभी तो अपने लोगों से धोखा खाने के बाद भी वो रुके नहीं। उनकी नजर ईस्टर्न बॉर्डर के पास इंडियन कॉन्टिनेंट पर पड़ी, जिसकी वजह थी इंडिया की नेचुरल वर्थ।
इंडिया की इसी वेल्थ पर कब्जा करने के लिए अलेक्जेंडर की फौज खाइबर पास को पास करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई, जहां पर उनका सामना हुआ पौरवा राज्य से। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां के राजा पोरस जो कि किसी भी कीमत पर अलेक्जेंडर को इंडिया में दाखिल होने नहीं दे सकते थे और ना वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर यहाँ आए। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। दोस्तों ये जंग अलेक्जेंडर के लिए अब तक की सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन जंग थी और सबसे लंबी जंग थी, जहां दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे राजाओं ने अलेक्जेंडर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, वहीं पोरस इतने महीनों जंग लड़ने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। इवन के इतनी ज्यादा जंग के बाद भी राजा जो थे वो बहुत बहादुरी के साथ अलेक्जेंडर का सामना कर रहे थे और इसी बात ने अलेक्जेंडर को बहुत खुश किया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर खुद राज करने दिया, बल्कि इनाम के तौर पर उसे कुछ और राज्य भी दे दी। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस राजा को पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं पाया, उसकी मौत सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ही हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उनका जिस्म हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मरने के 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डीकंपोज नहीं हो रही थी। दरअसल जून 323 BCE में बेबीलोन पहुंचे थे, जहां 10 दिन के बुखार के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब उन्हें दफनाया गया तो 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डीकंपोज नहीं हुई। यहाँ पर अगर हम मॉडर्न डॉक्टर्स की माने तो ये हो सकता है कि अलेक्जेंडर को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनके जिस्म में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई होगी और उनके आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई होगी और उनका सांस लेना तकरीबन ना के बराबर हो गया होगा। और इसी तरह तब के जो डॉक्टर्स थे वो दिल की धड़कन की बजाय सांस को चेक करते थे, तो ये हो सकता है कि उन्होंने वक्त से पहले ही अलेक्जेंडर को मुर्दा करार दे दिया हो। इसका मतलब है कि अलेक्जेंडर अगर कुछ साल और जी लेते तो उनकी हुकूमत ना जाने पूरी दुनिया में कहां कहां होती। चाहे कम उम्र में मर जाने की वजह से अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में राज ना कर सके हों, दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हीं की वजह से ग्रीक संस्कृति की झलक आज भी नजर आती है। यही नहीं, उनकी मौत के बाद चाहे उनकी हुकूमत खत्म हो गई हो, ले 200 साल तक इंडो ग्रीक किंगडम के जरिए ग्रीक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा। इसे हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से ग्रीक लैंग्वेज भी मैसेडोनिया से 22,000 माइल का सफर करते हुए इंडिया तक पहुंच गई। साथ ही इंडिया पर किए हमले के बाद ही सेंट्रल एशिया और वेस्ट के दरमियान ट्रेडिंग शुरू हुई। और इसके अलावा दोस्तों आज दुनिया में कम से कम 50 सिटीज अलेक्जेंडर के नाम पर हैं और इनमें से कई सिटीज को खुद अलेक्जेंडर ने बनाया था, जहां आज लाखों में लोग रहते हैं। और सिर्फ सिटीज ही नहीं बल्कि जाते जाते अलेक्जेंडर ने लोगों को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स भी दी, जिसे आज कई मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया भी जाता है। अगर हिस्टोरिकल्स की माने तो अलेक्जेंडर उन लोगों में से हैं जिनका जिक्र सैकड़ों जुबानों और कल्चर्स में किया गया है, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत etc। इसके अलावा एक मशहूर जो डायलॉग है, जो जीता वो सिकंदर, इसमें भी सिकंदर कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और दोस्तों ये थी सिकंदर की जिंदगी, जिसको हमने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट करके आपको समझाया जा सके। और हमारा सवाल जो हमने इस वीडियो के शुरू में पूछा, उसका जवाब हमें अशोका और हिटलर की लाइफ को स्टडी करने के बाद ही मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।